And आपकी last film Kabir Singh के बाद this is going to be your next film, you know, which means there's a lot of excitement. Everyone wants to see you on screen, but at the same time, I feel like there is also a lot of expectation that comes with that. How are you coping with this, or what are the thoughts that you have about this? First of all, good afternoon, everybody. It's really nice to see you guys in here, not out in the heat. I know it was very hot outside. So first of all, to all the paps, sorry to keep you guys in the heat. Hopefully you're all cooled down now. वो किधर गया? चुप रहा है तू देख. Hi, मेरे कबीर सिंह. जोरदार तालियां. नहीं, कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती. गलती दूसरे लोगों की होती है. But love you guys and sorry for the fact that it's so hot. Nobody can do anything about it. We're all dealing with it. Thank you to all the media in the back and everybody who's seated here for coming here today to see the second trailer of Jersey. We never really thought we'll have to make a second one. It's difficult enough making a first one. But I guess sometimes when a film is special, it has enough material to be able to make a second trailer. So first of all, I'm very proud of the entire team that we were able to, and I must say that the second trailer was wholly and solely handled by Gautam sir. We all turned towards him and said that किसी से कुछ नहीं हो रहा है. The marketing team also was very confused about how to make a second trailer, but I mean, he has lived with this film for I think 5 years now, 4 or 5 years. So I think he understands the heart of Jersey and the heart of Arjun Talwar and the heart of the relationship between Arjun Vidya and Kittu. And he came up with a trailer that I felt was very powerful, very impactful. I think the first trailer was really the heart of the film. You could see the emotionality of the film. You could understand the, the mood of the film. And this trailer really is the, call to action. 14th April, here we come. We're ready to go. We've dropped our second trailer. Proud to be here. And I'm coping all right, brother. I'm coping all right. Sometimes I need a little bit of IV and stuff like that. But other than that, I'm good. I mean, just before I came on stage, they just pulled the drip out. I was like, all right, let's go. I'm on. Put a colorful jacket on, look sharp, feel good, have a smile on your face. Always works. Sounds like a very shy thing to say. Well, I mean, tell me one thing. सुबह उठ के सबसे पहला thought क्या था आज? बहुत सारे thoughts होते हैं. Actually, सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो usually my son is sitting on my chest. That's how I wake up in the morning. So I wake up with a it's like Papa. That's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children. Absolutely. And the afternoons are dedicated to films. Mrinal, should I call you Vidya? I would love that. Yeah, perfect. So, आपके पास you played this very strong female character in this film, which we've seen as a trend over a lot of film choices that you've made, be it Tufan, Super 30, Dhamaka. What is that one character trait that you look for, or what are some things that you look for in the roles that you choose? Well, thank you for asking me that question. And good afternoon, everybody. I'm so happy to see you all again. Thank you. And coming back to your question, well, I think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character, but to be able to play a journalist, to be able to play a dancer, to be able to play a receptionist in this film, working for a hotel. So she has an identity of her own. She's independent and she's able to she's making sure that the family is financially stable. So I feel like there is a evolution as far as writing the characters in terms of Bollywood heroines are concerned. And I would really like to thank Gautam sir for giving me this opportunity, because it's such a meaty role and one of the most difficult role that I have played. First of all, to be in front of Shahid, you end up like forgetting your lines, and then you have a scene where you have to slap him, then you have a scene where you're romancing him, so it was overwhelming. And yeah, I must say that all the wives are not similar. इस रूम में I'm sure आप मुझसे you will agree with me कि हर एक के वाइफ में अलग अलग qualities होती है. So I'm happy that I am contributing and it's such a great role. And next time I'm sure कि मुझे ये questions नहीं मिलेंगे कि मृणाल you always play supportive roles. इस film में क्या हुआ? No, at all. So this is a very special film for me because it was very, like I mentioned, it was extremely difficult, but
having said that, there is one person in your life who will always push you to become better. And like in this film, you see the Kittu is the driving force for Arjun, you know, to get what he really wants, which you would see in the film. I would really like to thank my father, because he's someone who really inspired me to be not just a better human but a better actress. See, I'll go a little back before I come to answer your question, because my point of view towards these things is a little different. You know, जब after Kabir Singh, you know, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. You know, I was like, लेकिन वो लगा तो देंगे, लेकिन पिक्चर क्या होगी? You know, so I think एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं, तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा, यार मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है, क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म, आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म, बिकॉज टू मी द हार्ट ऑफ द फिल्म इज द साइज ऑफ द फिल्म. The size of the film is just a platform for a film, you know, and of course it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, हुआ वेरी स्मार्ट, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ, you know. तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ, मेरी यही थिंकिंग है. और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. यू नो, आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं, यू नो. तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं. और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें, तो शायद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है. ऐसी मेरी थिंकिंग है. हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा. लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं, क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है. You know, वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं. So why should you not be the film that is in the theaters when everybody wants to go watch a movie? You know, so you should not give yourself so much importance also कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे. बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, you know. So yeah, so that's how I look at it. I think फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए. मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज़ करूँगा जिनका दिल बड़ा है. See, I'll go a little back before I come to answer your question, because my point of view towards these things is a little different. You know, जब after Kabir Singh, you know, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. You know, I was like, लेकिन वो लगा तो देंगे, लेकिन पिक्चर क्या होगी? You know, so I think एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं, तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा, यार मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है, क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म, आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म, बिकॉज टू मी द हार्ट ऑफ द फिल्म इज द साइज ऑफ द फिल्म. The size of the film is just a platform for a film, you know, and of course it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, हुआ वेरी स्मार्ट, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ, you know. तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ, मेरी यही थिंकिंग है. और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. यू नो, आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं, यू नो. तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं. और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें,
तो शायद उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है, ऐसी मेरी थिंकिंग है. हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा. लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं, क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है. यू नो, वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं. सो व्हाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट इज इन द थिएटर्स व्हेन एवरीबडी वांट्स टू गो वॉच अ मूवी. यू नो, सो यू शुड नॉट गिव योरसेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस ऑल्सो कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे. बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं. यू नो, सो या सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. आई थिंक फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए. मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूँगा जिनका दिल बड़ा है. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters.
Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Hi Shahid, Ravi from ABP News. Hi Ravi, how are you? Hi, I'm fine. शाहिद लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को और मुझे लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए, मैं बोला नहीं यार 2 महीने हुए। मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर। क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है, तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, यू नो, दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ। जैसे आपने कहा मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे। सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल, आई डोंट फील दैट ओल्ड बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल। क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है, यू नो। और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता। मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे, यू नो, तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे। मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे, वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए। तो वो शायद मैंने खुद समझा है पिछले, ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ। 18 साल, 12, 13, 15 साल, जब भी मैं से पहले आए थे ये, तो हाँ आई थिंक 15 साल हो गए। और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था, और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन। सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि यू नो अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं। जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं, और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है। तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, यू नो। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें, मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे। तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक यू नो एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म, तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है। बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए। हाय शाहिद, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। हाय रवि, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। शाहिद लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को और मुझे लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए, मैं बोला नहीं यार 2 महीने हुए। मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर। क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है, तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, यू नो, दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ। जैसे आपने कहा मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे। सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल, आई डोंट फील दैट ओल्ड बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल। क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है, यू नो। और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में,
क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे, तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है. पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल, 12, 13, 15 साल. जब भी मैं से पहले आए थे ये, तो हाँ, आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है, मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं. और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है. बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है. तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है. और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें, मैं चाहूँगा. क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे. तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म. तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है. बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं. लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए. शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले. वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है. वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ. वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं. और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात. मैंने यही सीखा है. पेरेंट्स चूँकि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है. मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं मुझे. थैंक यू. नहीं, मैं ऑनेस्टली कह रही मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया. जी. लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था? कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा. क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था. मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी. मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था. तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू. हाँ, तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे. तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है. तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ. तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा. लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है. मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी. बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर. और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे. शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले. वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे?
उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ, वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात, मैंने यही सीखा है। पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं मुझे, थैंक यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कह मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी, लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी, मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू, हाँ, तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ, तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी, बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। एंड आपकी लास्ट फिल्म कबीर सिंह के बाद दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट फिल्म, व्हिच मींस देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एवरीवन वांट्स टू सी यू ऑन स्क्रीन, but at the same time I feel like there is also a lot of expectation that comes with that. How are you coping with this, or what are the thoughts that you have about this? First of all, good afternoon everybody. It's really nice to see you guys in here, not out in the heat. I know it was very hot outside, so first of all to all the paps, sorry to keep you guys in the heat. Hopefully you're all cooled down now. वो किधर गया, चुप रहा है तू, देख, हाय मेरे कबीर सिंह। जोरदार तालियां। नहीं, कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती, गलती दूसरे लोगों की होती है। बट लव यू गाइज एंड सॉरी फॉर द फैक्ट दैट इट्स सो हॉट, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, वी आर ऑल डीलिंग विद इट। थैंक यू टू ऑल द मीडिया इन द बैक एंड एवरीबडी हु सीटेड हियर for coming here today to see the second trailer of Jersey. We never really thought we'll have to make a second one. It's difficult enough making a first one. But I guess sometimes when a film is special, it has enough material to be able to make a second trailer. So first of all, I'm very proud of the entire team that we were able to, and I must say that the second trailer was wholly and solely handled by Gautam sir. We all turned towards him and said that किसी से कुछ नहीं हो रहा है. The marketing team also was very confused about how to make a second trailer, but I mean he has lived with this film for I think 5 years now, 4 or 5 years. So I think he understands the heart of Jersey and the heart of Arjun Talwar and the heart of the relationship between Arjun Vidya and Kittu. And he came up with a trailer that I felt was very powerful, very impactful. I think the first trailer was really the heart of the film. You could see the emotionality of the film. You could understand the mood of the film. And this trailer really is the call to action. 14th April, here we come. We're ready to go. We've dropped our second trailer. Proud to be here. And I'm coping all right, brother. I'm coping all right. Sometimes I need a little bit of IV and stuff like that, but other than that, I'm good. I mean, just before I came on stage, they just pulled the drip out. I was like, all right, let's go. I'm on. Put a colorful jacket on, look sharp, feel good, have a smile on your face. Always works. Sounds like a very shy thing to say. Well, I mean, tell me one thing. सुबह उठ के सबसे पहला thought क्या था आज? बहुत सारे thoughts होते हैं. Actually, सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो usually my son is sitting on my chest. That's how I wake up in the morning. So I wake up with a I was like, Papa! That's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children. Absolutely. And the afternoons are dedicated to films. Mrinal, should I call you Vidya? I would love that. Yeah?
Perfect. So, आपके पास you play this very strong female character in this film, which we've seen as a trend over a lot of film choices that you've made, be it Tufan, Super 30, Dhamaka. What is that one character trait that you look for, or what are some things that you look for in the roles that you choose? Well, thank you for asking me that question. And good afternoon, everybody. I'm so happy to see you all again. Thank you. And coming back to your question, well, I think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character, but to be able to play a journalist, to be able to play a dancer, to be able to play a receptionist in this film, working for a hotel. So she has an identity of her own. She's independent and she's able to she's making sure that the family is financially stable. So I feel like there is a evolution as far as writing the characters in terms of Bollywood heroines are concerned. And I would really like to thank Gautam sir for giving me this opportunity, because it's such a meaty role and one of the most difficult role that I have played. First of all, to be in front of Shahid, you end up like forgetting your lines, and then you have a scene where you have to slap him, then you have a scene where you're romancing him, so it was overwhelming. And yeah, I must say that all the wives are not similar. इस रूम में I'm sure आप मुझसे you will agree with me कि हर एक के वाइफ में अलग अलग qualities होती है. So I'm happy that I am contributing and it's such a great role. And next time I'm sure कि मुझे questions नहीं मिलेंगे कि मृणाल you always play supportive roles. इस film में क्या हुआ? No, at all. So this is a very special film for me because it was very, like I mentioned, it was extremely difficult. But having said that, there is one person in your life who will always push you to become better. And like in this film, you see the Kittu is the driving force for Arjun, to get what he really wants, which you would see in the film. I would really like to thank my father, because he's someone who really inspired me to be not just a better human, but a better actress. See, I'll go a little back before I come to answer your question, because my point of view towards these things is a little different. जब after Kabir Singh, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. लेकिन वो लगा तो देंगे, लेकिन पिक्चर क्या होगी? सो आई थिंक एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं. तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा, यार मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है. क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म. आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म, बिकॉज टू मी द हार्ट ऑफ द फिल्म इज द साइज ऑफ द फिल्म. The size of the film is just a platform for a film, and of course it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, वो वेरी स्मार्ट, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ, तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ, मेरी यही थिंकिंग है. और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं, तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं. और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें, तो शायद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है. ऐसी मेरी थिंकिंग है. हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा. लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं, क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है.
यू नो वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं. सो व्हाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट इज इन द थिएटर्स व्हेन एवरीबडी वांट्स टू गो वॉच अ मूवी, यू नो. सो यू शुड नॉट गिव योरसेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस ऑल्सो कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे. बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, यू नो. सो या सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. आई थिंक फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए. मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूँगा जिनका दिल बड़ा है. See, I'll go a little back before I come to answer your question because my point of view towards these things is a little different. You know, जब after Kabir Singh, you know, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. You know, I was like, लेकिन वो लगा तो देंगे, लेकिन पिक्चर क्या होगी? You know, so I think एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं. तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा यार, मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है. क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म. आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म. Because to me, the heart of the film is the size of the film. The size of the film is just a platform for a film, you know. And of course, it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, वो वेरी स्मार्ट, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ, यू नो. तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ, मेरी यही थिंकिंग है. और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यू नो. आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं, यू नो. तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं. और अगर हम साथ में मिलके एक फ़िल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फ़िल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें, तो शायद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है. ऐसी मेरी थिंकिंग है. हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं, और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा. लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं. क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है, यू नो. वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं. सो व्हाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट इज इन द थिएटर्स व्हेन एवरीबडी वांट्स टू गो वॉच अ मूवी, यू नो. सो यू शुड नॉट गिव योरसेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस ऑल्सो कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे. बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, यू नो. सो या सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. आई थिंक फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए. मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूँगा जिनका दिल बड़ा है. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters.
Bollywood is coming. We need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you, first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. It's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I'm very excited for the film to come out, first of all, because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. We need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you, first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. It's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I'm very excited for the film to come out, first of all, because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. We need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Hi Shahid, Ravi from ABP News. Hi Ravi, how are you? Hi, I'm fine. शाहिद, लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को, और मुझे लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए. मैं बोला नहीं यार, 2 महीने हुए. मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर. क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं, और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है, या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा? मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे. सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट फील दैट ओल्ड, बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है. और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे, तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है. पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल, 12, 13, 15 साल. जब भी मैं से पहले आए थे ये, तो हाँ, आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे, और धीरे धीरे समझाते भी थे कि अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है, मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं. और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है. तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है, और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है.
और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, यू नो. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे. तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म. तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है, बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए. हाय शाहिद, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. हाय रवि, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन. शाहिद, लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को, और लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए. मैं बोला नहीं यार, 2 महीने हुए. मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर. क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं, और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है, या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा? मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, यू नो. दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे. सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट फील दैट ओल्ड, बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है, यू नो. और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे, यू नो. तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है. पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल, 12, 13, 15 साल, जब भी मैं से पहले आए थे ये, तो हाँ आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि यू नो अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं. और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है. तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है. और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, यू नो. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे. तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म. तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है, बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए. शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले. वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है.
वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात, मैंने यही सिखाया। पेरेंट्स चूंकि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग अब है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं मुझे। थैंक यू। मैं ऑनेस्टली कह मुझे रही जो हूँ। चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी, लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई, तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू, हाँ। तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे। शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात, मैंने यही सिखाया। पेरेंट्स चूंकि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं मुझे। थैंक यू। मैं ऑनेस्टली कह मुझे रही जो हूँ। चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी, लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई, तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू, हाँ। तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। एंड आपकी लास्ट फिल्म कबीर सिंह के बाद दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट फिल्म, व्हिच मींस देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एवरीवन वांट्स टू सी यू ऑन स्क्रीन, but at the same time I feel like there is also a lot of expectation that comes with that. How are you coping with this, or what are the thoughts that you have about this? First of all, good afternoon everybody. It's really nice to see you guys in here, not out in the heat. I know it was very hot outside, so first of all to all the paps, sorry to keep you guys in the heat. Hopefully you're all cooled down now. वो किधर गया, चुप रहा है तू, देख। हाय मेरे कबीर सिंह।
जोरदार तालियां. नहीं, कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती. गलती दूसरे लोगों की होती है. But love you guys and sorry for the fact that it's so hot. Nobody can do anything about it. We're all dealing with it. Thank you to all the media in the back and everybody who's seated here for coming here today to see the second trailer of Jersey. We never really thought we'll have to make a second one. It's difficult enough making a first one. But I guess sometimes when a film is special, it has enough material to be able to make a second trailer. So first of all, I'm very proud of the entire team that we were able to, and I must say that the second trailer was wholly and solely handled by Gautam sir. We all turned towards him and said that किसी से कुछ नहीं हो रहा है. The marketing team also was very confused about how to make a second trailer, but I mean, he has lived with this film for I think 5 years now, 4 or 5 years. So I think he understands the heart of Jersey and the heart of Arjun Talwar and the heart of the relationship between Arjun Vidya and Kittu. And he came up with a trailer that I felt was very powerful, very impactful. I think the first trailer was really the heart of the film. You could see the emotionality of the film. You could understand the mood of the film. And this trailer really is the call to action. 14th April, here we come. We're ready to go. We've dropped our second trailer. Proud to be here. And I'm coping all right, brother. I'm coping all right. Sometimes I need a little bit of IV and stuff like that. But other than that, I'm good. I mean, just before I came on stage, they just pulled the drip out. I was like, all right, let's go. I'm on. Put a colorful jacket on, look sharp, feel good, have a smile on your face. Always works. Sounds like a very shy thing to say. Well, I mean, tell me one thing. सुबह उठ के सबसे पहला thought क्या था आज? बहुत सारे thoughts होते हैं. Actually, सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो usually my son is sitting on my chest. That's how I wake up in the morning. So I wake up with I was like, Papa! That's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children. Absolutely. And the afternoons are dedicated to films. Mrinal, should I call you Vidya? I would love that. Yeah, perfect. So, आपके पास you played this very strong female character in this film, which we've seen as a trend over a lot of film choices that you've made, be it Tufan, Super 30, Dhamaka. What is that one character trait that you look for, or what are some things that you look for in the roles that you choose? Well, thank you for asking me that question. And good afternoon, everybody. I'm so happy to see you all again. Thank you. And coming back to your question, well, I think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character, but to be able to play a journalist, to be able to play a dancer, to be able to play a receptionist in this film, working for a hotel. So she has an identity of her own. She's independent and she's able to she's making sure that the family is financially stable. So I feel like there is a evolution as far as writing the characters in terms of Bollywood heroines are concerned. And I would really like to thank Gautam sir for giving me this opportunity, because it's such a meaty role and one of the most difficult role that I have played. First of all, to be in front of Shahid, you end up like forgetting your lines, and then you have a scene where you have to slap him, then you have a scene where you're romancing him, so it was overwhelming. And yeah, I must say that all the wives are not similar. इस रूम में I'm sure आप मुझसे you will agree with me कि हर एक के वाइफ में अलग अलग qualities होती है. So I'm happy that I am contributing and it's such a great role. And next time I'm sure कि मुझे questions नहीं मिलेंगे कि Mrinal, you always play supportive roles. इस film में क्या हुआ? No, at all. So this is a very special film for me because it was very, like I mentioned, it was extremely difficult. But having said that, there is one person in your life who will always push you to become better. And like in this film, you see the Kittu is the driving force for Arjun, to get what he really wants, which you would see in the film. I would really like to thank my father, because he's someone who really inspired me to be not just a better human, but a better actress. See, I'll go a little back before I come to answer your question, because my point of view towards these things is a little different. जब after Kabir Singh, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. I was like, लेकिन वो लगा तो देंगे,
लेकिन पिक्चर क्या होगी, यू नो. सो आई थिंक एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं. तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा यार, मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है. क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म. आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म. Because to me, the heart of the film is the size of the film. The size of the film is just a platform for a film, you know. And of course, it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, वो वेरी स्मार्ट, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ, यू नो. तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ, मेरी यही थिंकिंग है. और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यू नो. आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं, यू नो. तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं. और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें, तो शायद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है. ऐसी मेरी थिंकिंग है. हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं, और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा. लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं. क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है, यू नो. वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं. सो वाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट इज इन द थिएटर्स व्हेन एवरीबडी वांट्स टू गो वॉच अ मूवी, यू नो. सो यू शुड नॉट गिव योरसेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस ऑल्सो कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे. बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, यू नो. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. आई थिंक फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए. मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूँगा जिनका दिल बड़ा है. See, I'll go a little back before I come to answer your question, because my point of view towards these things is a little different. You know, जब after Kabir Singh, you know, everybody said, अब तुम्हें ना 150 करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर. I was like, लेकिन वो लगा तो देंगे, लेकिन पिक्चर क्या होगी, you know. So I think एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते. मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं. तो KGF 2 अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. जर्सी अच्छी फिल्म होगी, ज़रूर चलेगी. फिल्म अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा यार, मैंने जो सिनेमा देखा है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना, अभी भी पॉसिबल है. क्यों नहीं कर रहा मैं, ये क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई एम चेजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म. आई एम नॉट चेजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म. Because to me, the heart of the film is the size of the film. The size of the film is just a platform for a film, you know. And of course, it's nice to see it on the big screen. So I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी. I think हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, वो वेरी स्मार्ट, कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ, यू नो. तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ, मेरी यही थिंकिंग है. और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यू नो. आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं, यू नो. तो मेरी रिलेशनशिप इन 4 लोगों के साथ है, जो 3 लोग इंक्लूडिंग मी 4 जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं. और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के, उसकी इमोशनैलिटी को समझ के, और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें, तो शायद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत पोटेंट होता है. ऐसी मेरी थिंकिंग है. हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी 2-3 पिक्चरें आती हैं, और यही 4 सवाल होते हैं, वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा. लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं. क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है, एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है, एक ऑडियंस है जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है, यू नो. वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं. सो वाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट इज इन द थिएटर्स व्हेन एवरीबडी वांट्स टू गो वॉच अ मूवी, यू नो. सो यू शुड नॉट गिव योरसेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस ऑल्सो कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे. बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, यू नो. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. आई थिंक फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए. मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूँगा
जिनका दिल बड़ा है. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So, guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So, guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So, guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Well, I'm so happy to meet you first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. You know, it's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So, guys, I mean, I'm very excited for the film to come out first of all because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. You know, we need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, yeah. Hi Shahid, Ravi from ABP News. Hi Ravi, how are you? Hi, I'm fine. शाहिद लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को और मुझे लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए. मैं बोला नहीं यार, 2 महीने हुए. मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर. क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा. मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में.
जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. यू नो दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे. सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट फील दैट ओल्ड, बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है. यू नो, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे. यू नो, तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है. पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल, 12, 13, 15 साल. जब भी मैच से पहले आए थे ये, तो हाँ, आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि यू नो, अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है, मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं. और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है. तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है. और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर. यू नो, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें, मैं चाहूँगा. क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे. तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक यू नो, एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म. तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है. बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं. लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए. हाय शाहिद, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. हाय रवि, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन. शाहिद, लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को, और लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए. मैं बोला नहीं यार, 2 महीने हुए. मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है. एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर, क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं? और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है, या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा? मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. यू नो, दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे. सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट फील दैट ओल्ड, बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है. यू नो, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे. यू नो, तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है. पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल, 12, 13, 15 साल. जब भी मैच से पहले आए थे ये, तो हाँ, आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि यू नो, अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है, मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं.
और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है। तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, यू नो। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे। तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म। तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है। बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए। शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात, मैंने यही सीखा है। पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। थैंक यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कह मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी। लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था? कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू, हाँ। तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे। शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात, मैंने यही सीखा है। पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। थैंक यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कह मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी। लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था? कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा,
क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था. मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी. मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था. तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003. रीडिफ, याहू, हाँ. तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है. तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ. तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा. लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है. मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी. बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर. और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे.